السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے علی عظمت اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک ایسے فنکار جو پاکستان آئیڈل میں ریجیکٹ ہو گئے. کیا حال ہے آپ کا علی عظمت صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوا صاحب. آپ سنیں آپ کو کیا حال چال ہے؟ بڑا عرصہ ہو گیا آپ کو دیکھا نہیں میں نے. اچھا، آپ بولنے میں، وضاقتہ میں، اپنے لباس میں اس پاگل لگتے ہیں. اس میں ہنسنے والی کو بات تھی. یہ اس کے اسی کرتوتوں کی وجہ سے میں نے ریجیکٹ کیا. ٹیلنٹ 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 ہے یہ دیکھیں ٹیلنٹ نہیں ہوتا، ٹیلنٹ ہے. بندہ یہ پوچھے ویسے یار تو پاکستان آئیڈل لینڈ کی گیا سے باقی یار بات سنو، ان سے تو میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو کہاں سنگل لینڈ گیا سی جناب جب میں اسٹیج پہ آیا ہوں نا گانے کے لیے، اچھا، تو آتے ہی میرا دھیان ان کی طرف پڑا تو میرا تو ہنسا ہی چھوٹ گیا. میں نے کی بات ہے، سبھی کا سبھی. اچھا پھر کیا جناب، آپ سمجھ لیں کہ میری بد نصیبی کا آغاز ہو گیا جناب. اچھا، وہ کیسے؟ وہ سر ہونا کیا ہے، میں نے آتے ہی 2-3 جگتیں کر دی. انجام آپ کے سامنے ہے. میں اسٹیج تے کھلوتا، مینوں کہتے کچھ سنا. میں کہ اللہ کا شکر ہے تو سنا. اور بے وقوف وہ پوچھ رہے تھے کچھ گانا سناؤ. مینوں کہندا گانا آندا ہے. میں کہ تینوں آندا ہے؟ تو سچ ہی بولتا نا اتھے. مینوں کہندا تو سنگر کیسا ہے؟ میں کہ ایسا. یہ تو تھپڑ کٹ مارے سر. انہوں نے جدو چپیڑ ماری نا اسی دوران میرا اتنے پرس ڈگ پیا. وہ پورے مہینے کا خرچہ سی جناب. ٹھیک ہے رہا 350 روپیہ دو. آپ کو کہتے پتا چکے ہے اے جج نے جنہوں نے خود نہیں پتا تو مینوں ریجیکٹ کر رہے ہیں جناب. دیکھو کڈی زیادتی ہے. محنت کیتیاں نے استاداں کولوں سکھے ہے. استاد کی روٹی کھاتی ہے. اچھا ارلا نہیں، ہاں جی، وہ سنگر لگتا ہی نہیں. لگتا کو پاٹا پرانا جا پلوان. ویسے آپ چہرے سے نا باقاعدہ پہلوان لگتے ہیں. سدھیر نما شکل ہے آپ کی. وہ جو فلمی ہیرو، کیا بات ہے جناب ان کی. تو کیا بات سیدھا آسان بڑے گھر میں جیسا منہ کہیں آپ اس کا. سر سر سنگیت جیڑا ہے یہ جسے دا اور سینے چ زور دا کام ہے. ادھر شو میں بھی یہی بکواس کر رہا تھا، اسی لیے ریجیکٹ کیا میں. بھئی بڑے بڑے بے سرے آدمی دیکھے نے، لیکن ایسا بد ٹنڈ آدمی میں بیٹھے. اچھا، آپ اپنا ہاتھ کنٹرول کریں. ہوں ہاتھ چکے ہیں نا، میں اے بام مروڑنی ہے تو تہاڈے وال نکل آنے نے. میں آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. گلاں تے ہوندے رہن گیا. ایکسپیریمنٹ کرو. علی عظمت صاحب نے پہلی باری جدو گانا گایا نا ادو ہی نہیں ٹینڈ کرتی نہیں ہٹے. کہتے بھاوے روز کرو میں گاواں گا. جی، آپ کا کوئی سیلف اوپینین نہیں ہے؟ آپ حدیقہ کہانی اور بشرا انصاری پہ کیوں ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ میں ان پہ ابھی تو چپیڑ ماری تو بات نہیں آ رہا. دیکھیں ججز کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ معاملہ اس وقت آپ کو پتا ہے کورٹس میں موجود ہے. کون سی کورٹ؟ میں پاکستان آئیڈل کے ججز کی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ نے مجھے ایک دفعہ جسٹس علی عظمت کہا تھا. میں نے نہیں جسٹس علی عظمت کہا، آپ نے اپنا نام خود رکھا ہوا تھا. تو یہ میرا رائٹ بنتا ہے کہ آپ مجھے یور آنر کہیں، آپ مجھے مائی لارڈ کہیں. آپ نے بات نہیں سنی. سوندا جی جان کے ٹینڈ اینو کر لیتا. سارے جیسے میرے کو ایک پھکی پئی. جی علی عظمت صاحب، راحت فتح علی خان جیسے لیجنڈز کے ہوتے ہوئے پاکستان آئیڈل کے آپ جج جائیں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے یا پاکستان کی بد قسمتی؟ اب تمہاری خواہش ہے کہ تمہیں تھپڑ مارا جائے اور ایک لافٹر آئے. لیکن اگر خواہش ہے تو چلو مار دینا. ٹھیک ہے پھر نہیں مارو تو زیادتی والی بات ہے. آپ نے دھیان دلوایا ہے. خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے وہ. میرا تو کوئی پلان نہیں تھا. لیکن پھر بھی ایک بات ہے کہ اس کے کرتوت اسی طرح کے اس کو پڑھنی چاہیے. آفتاب صاحب کو ہیلمٹ ہے گا تو مینوں دے دیں. اس جوڑیوں کو دلیپ کمار نے مجھ سے سوال پوچھا ہے، وہ بڑا گہرا سوال ہے. اس نے مجھے کہا کہ راحت فتح علی خان کے ہوتے ہوئے آپ جج ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے. کتنے بڑی چائے نیچے رکھے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. یاد کریں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ راحت فتح علی کے ہوتے ہوئے آپ وہاں پر بیٹھے تو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کتنا بڑا سنگر، کتنا بڑا لیجنڈ. ساری چائے میں نے ابھی کہا تھا آپ سے نیچے رکھیں. اس کا مطلب ہے میں مسلسل بولے جاؤں گا، آپ چائے پیے جائیں گے. یہ چائے آپ کی چھیڑ ہے کیا؟ مجھے بھاگ جائیں اگر خدا نہ خواستہ یہ چائے کا کپ لیک کر جائے. جی سر، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جتنے بھی ججز پاکستان آئیڈل میں جو ہیں ان کو سلیکٹ کس نے کیا تھا؟
अच्छा, इसी तरह आप मदिया नकवी की नकल उतारते हैं। और इसी तरह मैं शोएब अख्तर की भी नकल उतारता हूँ। ये तीनों आइटम जो है ना बहुत ज्यादा तेज बोलो और इतना जितना इंसान तेज बोलता है ना उतना ही अच्छा पॉप सिंगर बन सकता है। चलें, आपने तेज बोल लिया, बड़ी अच्छी नकल उतार ली। अब आप वाकई हमारी अपनी क्यूरियोसिटी के लिए ये बता दीजिए कि आपको आखिर सिलेक्ट किसने किया? मैं पाकिस्तान का वो वाहिद आर्टिस्ट हूँ जो क्लासिकल से लेके रॉक म्यूजिक से लेके रैप तक सब कुछ गाता है, सब कुछ बहुत और अच्छी एक चीज नहीं सही गाता। आपको पता क्या है क्लासिकल म्यूजिक में आपको बताता हूँ, देखें। और तेरे को 50 रुपए टूटे हैं। मैनू ले वंज सजड़ा नाल के टिकटा दो लाला ना लगे हाथ भी कर लो। टिकटा दो लाला जितना दो लाला यार बिना दिल मेरा नहीं लगता यार बिना सर, जिसका गले में जितना ज्यादा पोटेंशियल हो ना वो उतना बड़ा रॉक स्टार होता है। जैसे आपने आफ्ताब साहब, आप माशाल्लाह, आप जिस तरह से आपकी आवाज है, ओए ओए आपने तो ये जो आपने किया आपके अंदर बकायदा एक रॉक स्टार है। आप कीजिए मेरे साथ सुन लो उनसे को तो आप करें जरा सुन लो। आपने अच्छा जो मैंने ये किया फौरन आ गया आपने। अब आया ना उसी स्टाइल के अंदर आया ना वो जो आपका एक स्टाइल है आपने ये अपने, आ गया ना आपने अपने अंदर 1 मिनट की बात होती है। अपने एक म्यूजिशियन का सर फाड़ दिया था आपने माइक मार के, वो क्या था? उसके बाद उसने मेरी टेंट भी की थी। अच्छा जी, मास्टर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैं सुने बगैर कहता हूँ इतनी फजूल बात करेंगे, इतनी फजूल बात करेंगे, आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे। अच्छा आप फजूल बात नहीं, पहले मास्टर जी फिर सोफिया। पहले मिस सोफिया होनी चाहिए फिर मास्टर जी। मैं कह रहा हूँ ना, ये मैंने फैसला करना है। नहीं मैं यहाँ क्या मैं सवाल पहले कर ला। चले सादिक से सवाल ले लें। मास्टर ठीक था, मास्टर ठीक था, मास्टर ठीक है। बहन कोई खुदा वास्ता नहीं, मैं उसने सवाल पूछा मैं भाग जाऊंगा यहाँ। मैं पॉप स्टार हूँ खुद, मेरा चीखो पुकार का काम है, लेकिन इसका जो बेड़ा गर्क हुआ है किसी का भी नहीं। नहीं, आपको क्या मसला क्या? देखिए कितनी प्यारी लग रही हो। गाली ने निकाली सादक मुझे पहले बता रहा हूँ। वो कब गाली दे रही है? वो तो देखी हो रही है। मैं एक सवाल की गल की थी ये सादक भी पहले पॉप स्टार थी जी, बाद जो सस्पेंड हो गए। जी जी सर, मुझे पूछना था, गाने के दौरान तो आप बहुत उछलते कूदते हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान आइडल के अंदर बैठे होते तो ऐसा लग रहा होता है जैसे सो रहे हैं। मेरे सामने जो परफॉर्मर है ना उनमें इतना करंट, इतना स्पार्क नहीं है। जिस तरह की मुझे सिंगिंग पसंद है वो बिल्कुल उस तरह की सिंगिंग नहीं करते, इस वजह से मैं बोर हो जाता हूँ। वरना ये जो मेरे साथ बुशा अंसारी बैठी हुई है, एक तो मैं इनसे भी बड़ा तंग हूँ। बिला वजह अगर आप देखें ना साहब भाई, बिला वजह फजूल बंदा गा रहा होता है, उसको कह रही होती है क्या बात है, सदके क्या गाना गाया, ऐसा लगता है जैसे किसी ने माचिस की डिब्बी में बारूद भरा है। देखा आपने, माचिस की डिब्बी में बारूद भरा, कोई लाफ्टर नहीं था, लेकिन जो लाफ्टर इस पे था ना, क्या बात है। ये आर्टिस्ट है हमारे मुल्क के बहुत बड़े। एक इनके साथ दूसरे बैठे हैं क्यानी साहब। क्यानी साहब नहीं है, क्यानी साहिबा है। हाँ क्यानी साहब गए हैं या क्यानी साहिबा गए हैं। वो आपको आदत है ना जनरल क्यानी को देखने की। जनरल क्यानी अब नहीं है, वो किधर गए? वो रिटायर हो गए। वो किधर गए? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? बात सुनो संगे मरमर के खोते। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान और पहला लफ्ज है, आगे हो ना तुम वापस, अब तुम्हें तुम्हारी जान पे बन जाती है। कहता ये ऐसे वजह तो मैं बाहर किया। अच्छा जनाब, पहला लफ्ज है हामी भरना। जी जी, ये हामी दो तरह से लिखा जाता है, एक है हलवे वाली और है हंसी वाली। ये है जो हलवे वाली है उसका मतलब है हिमायत, ये गलत लिखा जाता है, गलत कह दिया जाता है। दूसरा हामी भरना किसी चीज पर रजामंदी का इजहार करना, वो हंसी वाला है जिसमें शोशे वाला है होता है। ये हाथी वाला भी कहेगा जी। ये हाथी वाले है से, सॉरी मैं जानबूझ के नहीं इस तरह कर रहा था, मैं यूं करना चाह रहा था। हाथी वाले है के साथ जो है वो है हामी भरना कि मैं तुम्हारे साथ एग्री कर रहा हूं। इसकी एटिमोलॉजी बड़ी खूबसूरत है।
कि पता किससे निकला है? किससे सर? हाँ मियाँ। अच्छा हाँ मियाँ। हाँ मियाँ। अच्छा हाँ मियाँ किस तरह आया? भाई जो तुम कह रहे हो हाँ मियाँ हाँ, तो हाथी हलवा खाता है सर? यार चुप, सीरियसली यार, तुम फिर यूरोप नहीं जा सकते एक दफा? मैं फिर हाथी से बैठ ही जाऊंगा। हाथी पे बैठ के यूरोप किस तरह जा सकते? सवाल ही पैदा नहीं होता, जा ही नहीं सकता क्या हाथी पे बैठ के? ना। यानी बाय रोड नहीं जा सकते? यूरोप जा सकते हैं सर, जा सकते हैं। अच्छा आप बताएं, अगर हाथी पे बैठकर यूरोप जाना हो तो यहां से किधर जाएंगे? अच्छा जी, अगला लफ्ज है माफी। अच्छा माफी क्या लफ्ज है जी? मुआफी। हेलो। जितनी देर माफी मंगनी अगला दो चपेड़ा काट। ये ऐन को जितना इजी तुम लोग लेते हो ना, उतना इजी ये मौसीकी को लेते हैं। मुआश, मुआफी, बदमुआश, लोग कहते हैं बदमाश। बदमाश तो कोई लफ्ज है ही नहीं। बात सुनो, इस तरह बात बढ़ती जाएगी आगे। हम शेर व शायरी करते हैं, कुछ सिंगिंग करते हैं, हाँ कुछ जी। करते हैं, कुछ शायर वायर। आफ्ताब साहब शेर दे दो गुजारिश। शेर जी शहजाद अहमद का शेर आज बहुत खूबसूरत शेर। वाह। वो कहते हैं शाम होने को है, जलने को है शम्मे महफिल। वाह। शाम होने को है, जलने को है शम्मे महफिल, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं परवाने को। अच्छा फिर है त्योहार। त्योहार मिस प्रोनाउंसिएशन है, ये त्योहार है। लाओ कोई लफ्ज जिड़ा ना सीधा नहीं रहने देता, चुक के तो कलाबाजी लो आती है। जैसे बसंत का त्योहार, बसंत को बसंत कहेंगे या बसंत कहेंगे? बसंत कहेंगे। बसंत तुम भी बनाते हो बसंत? ये मनाता नहीं, ये खाता है। ये बसंत के खाबे डाबे जी सिर्फ। हाँ बसंत पे तो बहुत खाबे होते हैं। खाबे भी खा जाता है, गुड्डे भी खा जाते हैं, पिन्ने भी खा जाते हैं, बल्कि जेड़ा गुड्डी डा रहा होंदा वो भी खा जाता है। और तू कदी गौर जावे पिन्नी वर्गा तेदा सीरे बेचारे दा साधन छाते ही बात लाता, ओ गुड्डी ना तोड़ी ओए। ते मास्टर ते छाते चढ़दा ही नहीं जी, हवा बड़ी तेज होती। गुड्डी उड़ा रहे सन ते डोर नूं गुंझल पै गए, मास्टर दी लत्त फस गई, वो ढिल दे मास्टर नाल ही जा रहा सी। गुड्डी कट्टी गई, मास्टर फिर हड़प्पियों लब्भा। अच्छा जी, इस दफा वैसे बाय द वे बसंत मनाई नहीं जा रही। ये राना मशहूद साहब ने, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर है मुतल्लिका, उन्होंने ये फरमाया है कि हम लेजिस्लेशन करेंगे और यही तरीका है। आफ्ताब साहब तुसी मनाइए जी कदी बसंत? जी आफ्ताब साहब ने तो इजाद की थी बसंत। मैं पतंग उड़ाते हुए एक इंतहाई ऊंची जगह से गिरने का एजाज भी रखता हूँ। बहुत ऊंचे मकाम से गिरा था, समर सॉल्ट कर। इंतहाई ऊंची जगह से आप गिर गए नीचे? हाँ जी। बच गए। तो तुसी केड़े केड़े गुड्डे उड़ाते रहे हो जी? बहुत मास्टर जी सारे हर तरह के गुड्डे। इस गलत भी तरला ही है। ये एक स्टाइल है। आफ्ताब साहब खेड़े खेड़े गुड्डे उड़ा बना ले अंदर बे अंदर, सानू तो कुछ पता और रोना लगता बांदर फाटक चुज गया। अच्छा जी, बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत खुश रंग गुड्डा जो है ना, और बड़े साइज का, उसे उड़ाने में मजा भी बहुत आता है, उसका पेच करने में बहुत मजा आता है। और ये डिपेंड करता है मास्टर जी कि हवा किस तरह की है, किस नेचर की हवा है। हाय हाय। बहुत तेज हवा है तो किस तरह का गुड्डा चाहिए, अच्छा कम हवा है तो किस तरह का चाहिए। मतलब एक पतंग होती है। जी। अच्छा, लोग पतंग को समझते हैं कि हर काइट पतंग होती है। पतंग एक खास तरह की काइट को कहते हैं जिसे तुक्कल के नाम से भी याद किया जाता हेलो है। तुक्कल। तुक्कल तुक्कल। और एक अक्खल होता है, अक्खल गुड्डा होता है बहुत बड़ा, जिसको 2 आंखें लगी होती हैं। हाँ जी हाँ जी, वो किसी च वजदा नहीं, वो सारा का ना ही अखल, वैसे अन्ना ही होता है। फिर एक अच्छा गुड्डा वो होता है जिसके नीचे पान हो। हाय हाय, उत्ते कथा चूना लाया। वो अपने पान की वजह से, अपनी शेप जो होती है ना जहाज सी, उसकी वजह से गुड्डा कहलाता है। इसका जो फीमेल है वो परी कहलाती है, हाय हाय। और परी बहुत हसीन होती है। जी। शादी ते भी गए हो तुसी? एक लिपो गुड्डे भी होंदी सर। लिपो वो होती है, लिपो होती है मास्टर की। लिपो दरअसल होती है जिसका वेट नहीं होता, बहुत वेटलेस फेदर वेट होती है। उसका तीर बहुत मुड़ जाता है, उसके अंदर जान नहीं होती। यूं समझिए कि एक तरह से बीमार पतंग जो होती है वो लिपो।
सर तुसी गुड़ियां बनाते रहे नहीं, गुड़ियां बनाता नहीं था मैं, गुड़ियां कंज्यूम तो करता था। ये गुड़ियां खोलते होंगे ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਨਾ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫਨ पिनने से ज्यादा चरखी, अगर बड़ा पेच कर रहा हो ना तो फिर चरखी चरखी पकड़ने का फन आना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि किस तरह की हवा है, कैसा पेच है, कितना फासला है और मुझे कितना लच्छे में देना है, किस तरह और स्लो रखना है। चरखी चलाने वाला जो है खुद कारीगर होता है बहुत बड़ा। और पिन्ना आमतौर पे तंग करता है। पिन्ने के ऊपर जिस तरह की डोर होती है ना, वो कई दफा उसके वो जो गुंजल है वो चले जाते हैं आगे। मास्टर पीछे खलो के चरखड़ी फड़दा हुंदा सी। एक बारी भी उन्हें देखा पीछे है ही नहीं। ये 750 ਦੀ ਵੇਚ ਆਇਆ था। अच्छा सर एक बड़ी अजीब सी शेप वाला गुड्डा हुंदा है जिथे थल्ले लम्मा जा पार हुंदा है। वो माइल बदतवालत होता है नीचे की तरफ। पहले उसे मच्छल कहा करते थे, मछली से है, मछली की शक्ल मच्छल, और अब उसको मच्छर के नाम से भी याद किया जाता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है वो, लेकिन वो पेच के काम नहीं आता, वो तो सिर्फ खूबसूरती के लिए। उसकी शक्ल बड़ी खूबसूरत होती, जैसे बर्फी नहीं कटी होती, जी 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 उस तरह का होता। पर मास्टर साहब ने 5000 वाला गुड्डा उड़ाया सी। हैं लियांदा 5 रुपए दी सी, टेपा ला ला के 5000। अच्छा सर जी ये ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨੇ हाथ वो तो वैसे इलीगल है। मैं समझता हूं कि ये बिलो द बेल्ट है हाथ मारना, जो आप नीचे से डाल लें, पेच करें और जोर से खींचा मारें और उसकी गुड्डी काट दें। इस गेम की भी, ये गेम है और इसकी भी नजाकतें हैं। जो खानदानी पतंगबाज हैं, जो इसको एक स्पोर्ट समझते हैं, जिन्होंने इसको बदमाशी और रंगबाजी का वसीला नहीं बनाया, वो देखते हैं किसी की डोर अटकी हुई है ना तो छुड़वा देते हैं वो। जिस तरह क्रिकेट में आपके मुखालफी, मैंने इंतखाब आलम कितना सीनियर कप्तान था, उसको तस्मे बांधते देखा हुआ है कि सिलीमिडॉन से आकर उन्होंने तस्मे बांधे ओपनर बैट्समैन के और फिर वापस अपनी जगह। ये है स्पोर्ट्समैनशिप। अच्छा जी, आपने पतंगबाजी की है? बहुत, मैं सारी जिंदगी करता हूँ, आपको पता, मैं मेरी परवरिश सारी गलियों कूचों में हुई है। नहीं तो नीचे लाने के लिए पतंग को अगर आपने ऊपर से नीचे डाइव करवाना है, क्या करेंगे? पता नहीं, कभी इस पे गौर नहीं किया मैंने। ये एक तरीका होता है बड़ा आसान। वो खींचते हैं पीछे तो आया नहीं, उसको तुनका मारते हैं और डोर देते हैं। तुनका मार के डोर देते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, फिर खींच के नहीं। अच्छा सर गुड्डी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? इसको हमारी जुबान में तो झोंक कहते हैं, झोंक मार। जोक एक गुड्डा होता है जो जिसके नीचे गोलाई में वो होता है, उसको शरला कहते हैं। वो बच्चों के लिए होता है, वो भद्दी शक्ल होती है तो भद्दा सा होता है, उसको भद गुड्डा भी कहते हैं। सर तुसी तलीन किथों अच्छा सर गुड्डियां दे यार साइज मैं गुड्डों पे बात करने नहीं बैठा हुआ। अरे उनके साइज तो बताएं, गुड्डों में साइज क्या होता छोड़े, अगले लफ्ज पे आए। नहीं सर सारी तफसील बता दी, जरा साइज भी बता क्या दी। साइज क्या बताऊं सर गुड्डों कीमत के हिसाब से 500 रुपए वाला भी होता है, 1000 रुपए वाला भी होता है। सर हुजम के जो साइज, जो आम तौर पर 200 रुपए वाला गुड्डा जो है ना, वो ज्यादा तगड़ा गुड्डा समझा जाता है। लेकिन जो इनके साइज की डिटर्मिनेशन है वो पैसों से नहीं होती, वो ता से होती है। 1 तावा, 1.5 तावा, 2 तावा, 2.5 तावा तक, वो जो बहुत ह्यूज होता है। तावा 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 ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਟੀ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਸੰਤ ਚ। ਚਲੋ ਛੱਡ ਦੋ, ਬੀਸੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? मास्टर साहब लड़ा कोई गुड्डी नहीं, सिर्फ टांगा हुंदा सी। टांगा नहीं हुंदा जेड़ा टांगा इन्हां कोल नहीं सी हुंदा, इन्हां दे वड्डे भरा को हुंदा सी, इन्हां नूं अगे बन्निया हुंदा सी। आप चाहे जितने भी साहिब सरवत क्यों ना हो, फिर भी जो लुत्फ पतंग लूटने में आता है ना, उड़ती पतंग जो आपके, जिसको भाग के लूटना पड़ता है, जिसकी डोर पे नजर रखते हो, भागते हो आप, कई दफा गिरते हैं। एक चीज और होती है, वो होती है कुप। जी 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 हनेरा। वो कुप जो होता है ना, वो बिल्कुल मतलब वो आम कागज के साथ, उसमें तीर नहीं होता, यानी वो ग्लाइडर होता है पतंगों का। अच्छा जी। और वो कुप बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत ज्यादा, उसको छोड़ देते। कुप की तो ये खूबी है कि उसको उड़ा के जब वो हवा के दोष पे जाता है ना, आप उसको छोड़ दें। ये कुप बराए फरोख्त नहीं होता, कुप खुद बना। कुप आमतौर पर पुअर मैन्स काइट कहलाती है, कि जो गरीब आदमी जिसके पास ना वो लूट सकता है ना वो खरीद सकता है, तो फिर वो कुप बना के उड़ाते हैं। बहुत छोटे बच्चे, सबसे छोटे बच्चे जो लगता 500-700 बंदा मार के ना एक बंदा बनाया। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। खुद रात मेल बॉक्स में आज हम एक सवाल लेकर आए हैं, बड़ा सनसनीखेज सवाल है।
एनोनिमिटी की गुजारिश की है इन्होंने, तो इसलिए हम उनका नाम नहीं लेंगे। वो साहब कहते हैं कि आफ्ताब साहब, मैं एक निहायत अहम हुकूमती ओहदेदार का स्टाफ ऑफिसर हूं और मैंने अपने बॉस में बेशुमार एबनॉर्मल हरकत देखी हैं, हत्ता कि ऐसी हरकत जो बज़ाहिर पागल लोग किया करते हैं। तो क्या ये कौमी बदकिस्मती समझी जाए? अब ये तो हरकत जानने के बाद बताया जा सकता है कि ये पागलपने की हुदूद में दाखिल होते हैं या नहीं, लेकिन बाज औकात इंतहाई नॉर्मल लोग भी ऐसी हरकत का इर्तिकाब कर बैठते हैं छोटी मोटी, कि जो बज़ाहिर लगता है कि ये थोड़ा सा पागलपने की टेरिटरी में दाखिल होती नजर आती हैं। मसलन मैं एक साहब को जानता हूं, एक हुक्मरान के करीब रहने का मुझे भी इत्तफाक हुआ। उनके पास एक साहब आया करते थे जो बाद में हुक्मरान बने। वो टेलीफोन कॉल करते हैं अगर किसी को, तो आज तक ये उनकी पेट आदत है, उनके करीबी दोस्त बताते हैं और मैंने ये खुद नोटिस की थी कि जब तक वो कॉल अटेंड नहीं हो जाती वो सारा दिन बल्कि सारा हफ्ता उस आदमी की तलाश में रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे बाकायदा गालियां तक देते हैं कि तुम कॉल अटेंड क्यों नहीं करते। तो ये एक आदत है जो बन जाती है, आप एक लूप में चले जाते हैं। रिकॉर्ड नहीं, सुई फंस जाए कहीं तो वो उस सुई उस लूप से निकल नहीं पाती और आप एक ही लफ्ज बोलते चले जाते हैं। ये जिस तरह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी उसी की एक किस्म है। बड़े बड़े हुक्मरान हिटलर को बहुत से आर्जे लायक थे, जिसमें से एक तो ये कि वो कभी खुशबू नहीं लगाता था। खुशबू लगाई हो किसी ने तो उसको नापसंद करता था। बड़ा गंदा से हिटलर गटर च रहंदा सी। ऐसे ऐसे अजीब लोग होते हैं। एडिसन कितना बड़ा, कितना ज़हीन आदमी और कितना बड़ा आदमी था। एडिसन ये बल्बों वाला वो ये करता था कि रात को पढ़ते पढ़ते जब कुर्सी पे नीम दराज होके सो जाता तो सोने से पहले हाथ में 5-4 गेंद रख लेता था। क्यों जी, ख्वाब जो टेनिस खेलता सी। बस वो लेके, सुन तो लो ना, कि वो लेके समेट के काफी सारे गेंद तो सो जाता। अब जब गहरी नींद सोता तो गेंद गिरना शुरू होते एक एक करके, तो उसकी आंख खुल जाती थी, वो जाग जाता। ये गेंद उसने रखे इसलिए हुए थे कि मुझे सोने से रोकेंगे, और जो ही नींद से उठता था वो जो ज़हन में आया लिखना शुरू कर देता था। वो ये कहता था कि ये जो तहरीर है ना, नींद से उठते ही ये मेरे जितने प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन मैं उस वक्त लिखता था, क्योंकि ये विजदानी तहरीर होती थी। ये अपना आड़ू सर, ये सौण तो पहले दुआने इकट्ठे करदा और जेड़ा दुआना डिगदा उठ के खा लेंदा। ए मास्टर साहब नहीं अपने, ये सौण तो पहले इनहेलर हाथ च लेके सौंदे। क्या चीज? इनहेलर सर। वो क्यों? गरीब ही इन्हें, इन्हें को सिर्फ इनहेलर ही है। अच्छा जी, एक आदमी है मार्क जकरबर्ग। ये ना कौन लेगा? यार इतना मशहूर आदमी जी, मार्क जकरबर्ग। फेसबुक का जो ओनर है वो पता है क्या करता है? वो किसी ऐसे जानवर का गोश्त नहीं खाता जिसे उसने खुद ना मारा हो। वाह वाह वाह। उसके बारे में मशहूर है कि वो जब भी किसी होटल में इधर उधर जाएगा तो बेचारा सब्जी खाएगा, कुछ और चीज खाएगा, कभी गोश्त हमेशा उसी जानवर का। मछली खाएगा तो वही जो उसने खुद पकड़ी है, वाह। मुर्गा भी खाएगा तो वो जो उसने खुद मारी है। ये तो खाना खाने से पहले कुकड़ दे हथी पे होता है। ये सवाल है ना, अपना आड़ू बड़ा दरवेश आदमी है सर। वो कैसे? एक किसी का मारे अभी खा जाता है। एक बंदा योशिरो नाकामात्सु। अल्लाह तो जिंदगी से दे। हेलो, अल्लाह तो योशिरो नाकामात्सु का कोहाको, ये नोबेल लॉरिएट है। वो क्यों होता है सर? नारियल बहुत अच्छा तोड़ता है। बहुत बड़ा जापानीज मूजद है। अच्छा, इसने बेशुमार चीजें इजाद कर रखी हैं और इसको एक अजीब आदत है। सर वो दसो वो की असी ओदे च ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो रात को सोए उठता है, अपने आप को लोहे के एक टैंक में बंद कर देता है और पानी में उतर जाता है। हेलो, और टैंक चला देता है। वो पड़ा रहता है, बहुत देर तक पड़ा रहता है बगैर ऑक्सीजन के। वाह वाह। अब वो ये कहता है कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये क्रिएटिव थॉट की दुश्मन होती है। अच्छा जी। वो जितनी क्रिएटिविटी वो समझता है कि जो मेरी इजादात का बायस बनती है, वो बगैर ऑक्सीजन के, वो लम्हा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती और वो सोचता है। देखो ना, अपने अपने ऑब्सेशंस हैं। जी जी। वाह वाह।
वो इस आइडिया से ऑब्सेस्ड है, और जब भी उसने कोई इजाद करनी होती पानी में चला जाता है बगैर ऑक्सीजन के। मास्टर ने ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਹੋਵੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। सारा कोई हनीफ बशीर को सादक को नेड़े का बंदा जी ऐसी भी वाकफ हुई है। अच्छा, कोई वाकया नहीं। कद्दाफी को जानते हो कि नहीं? मोहम्मद कद्दाफी, मोहम्मद कद्दाफी लीबिया के डिक्टेटर थे। उनके बारे में मशहूर है कि वो मेल गार्ड्स का एतबार नहीं करते थे। 40 खवातीन उनकी मुहाफिज थी, उनको अमेजॉन्स कहते थे। अमेजॉन्स एक बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है। वो खवातीन जो जंगजू खवातीन थी, फाइटर्स, तो 40 अमेजॉन्स थी जो हिफाजत पर मामूर थी मोहम्मद कद्दाफी। देखे ना, ये भी कंपल्सिव ऑब्सेशंस होती हैं कि मेल्स मेरे साथ हसद करते हैं, मेल्स मुझे मार सकते हैं, फीमेल्स नहीं मारेंगी। तो ऐसी ऐसी अजीब चीजें थी उसके अंदर। फिर कद्दाफी साहब के अंदर एक और खसलत भी थी, उन्होंने चाहे जहां भी जाना हो, चाहे किसी 7 स्टार होटल में भी उनका कयाम तय हो, वो अपना खेमा साथ जरूर लेके जाया करते थे। ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੈਮਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। खेमा इतना बड़ा था कि उसके लिए एक C-130 जहाज अलहदा से उड़ा करता था। ਉਹ ਖੈਮਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। और जब खेमा बना दिया गया, अंदर बादशाह सलामत बन के कद्दाफी साहब जब बैठ गए तो बाहर एक ऊंट जरूर बांधा जाता था। ਹਾਏ ਹਾਏ, तो ऊंट लाया जाता था बकायदा कि जी ऊंट के बगैर तो खेमा मुकम्मल नहीं होगा। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਊਂਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੱਕੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। कई कई घंटे हुजूरे वाला तशरीफ नहीं लाते थे कि बाहर ऊंट बंधा होगा तो फिर मैं अंदर जाऊंगा। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਤੇ नहीं। तो जनाब स्टाफ ऑफिसर साहब, ये सब कुछ होता है हुक्मरानों के साथ, अहम शख्सियात के साथ। इस तरह के छोटे छोटे डिसऑर्डर्स होते हैं। ये इसको बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि ये जो हुक्मरान होते हैं ना, ये नॉर्मल नहीं होते। हुक्मरानी बजाते खुद बड़ा एबनॉर्मल काम है। कोई नॉर्मल है कि आप 10 बंदे, घर के 10 बंदों के हुक्मरान बना दिए जाएं तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाती। कुजा ये कि आप 20 करोड़ अवाम के हुक्मरान बन जाएं। तो बाज सदमे इतने मिलते हैं, बाज खतरात इतने आप फेस करते हैं कि आपके अंदर शॉर्ट सर्किटिंग होती रहती है। ये जो छोटी छोटी शॉर्ट सर्किटिंग होती है, छोटे छोटे बारीक रेशे जो जलते रहते हैं दिमाग में, ये डिसऑर्डर्स का बायस बनते हैं। खुद हजरात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि जलालपुर भटिया के एक घर में बंदर और कुत्ते में बहुत दोस्ती है। दोनों एक साथ खाते और शरारतें करते हैं। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बड़े प्यार से मोहब्बत से अपने यहाँ बिठा के चलते फिरते। कई लोगों ने, ट्रक ड्राइवर्स ने ट्रक के ऊपर आगे बिठाई होती है। अच्छा, आड़ू की भी तो किसी के साथ दोस्ती रही होगी कभी? ਇਹਦੀ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। पर तुसी भी खाम घासन लग जाते। कौन इटा खांदा कदी किसी दुनिया दे? नहीं नहीं, ये बहस में नहीं ऐसा। अच्छा, मेरी बेबसी ते हस रहे। मैं तनूर वाले की बेबसी। ਆੜੂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਗੁਰੀਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੁਰੀਲਾ ਅਕਸਰ ਇਹਦਾ ਕੱਚਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੀਲਾ ਇਹਦਾ ਤਾਇਆ ਜ਼ਾਤ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੀਲਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ, ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ? ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈ, ਜੀਓ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲੀ। तो उसमें तो जनरेटर आता है। ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਟਾਫ। लोग बंदरों को सिधाते भी हैं, पता है आपको? है जी। हाँ, बंदर गाड़ियां साफ करते हैं, गाड़ियां वाइप करते हैं आगे से। ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ। क्या सिखाया? ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਆ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਬਾਂਦਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਬਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤਾ। जी। खबर है कि सियालकोट के नजदीक एक कांस्टेबल ने शराब के नशे में आकर अपने थानेदार की पिटाई कर डाली। कांस्टेबल नशे डीएसपी हैं। तू भी अगो जवाब दे सू। अच्छा जी, आप हैं थानेदार? हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਪਈਆ ਜੀ। जनाब जी सन मार पी गई। तुम कैसे थानेदार हो? अपना डील डोल देखो, जुस्सा देखो,
और कांस्टेबल से पिट गए। ਉਹ ਸਰ ਕੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। नहीं क्या बड़ा कब आवर है वो? ਉਹ ਸਰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਨੇ ਵਗੈਰੇ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਫੈਂਡੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा वैसे ये कैसा बदनसीब होगा बेचारा जिसने शराब पी। ये रिंद होते हैं ना शराब पीने वाले, इसको जुर्रत रिंदाना कहते हैं। वाह। कि अदरवाइज कोई हिम्मत हौसला नहीं होता शराब पी के नशे में। जब आप बहुत ज्यादा अल्टीट्यूड आ जाए तो फिर अपने अफसरों को आप, ये पुलिस पे तो अक्सर होता है। ਸਰ ਇਹਦੀ ਮੋਟੀ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੌਫ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੀਰਾ ਵੀ ਸੀ ਸਰ। ਉਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੈ। अच्छा तुम्हारे साथ ये जो बैठा हुआ है सुधीर की पैरोडी, ये कौन है? ਮੁਖਬਰ ਮੁਖਬਰ और तुम कहाँ होते हो? ਮੈਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਹੀ ਹੁੰਨਾ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਫੜੀ ਚਰਸ ਤੇ ਕੇਚ ਥਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਮੁਖਬਰ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਮੁਖਬਰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੀਆਂ। ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ। अच्छा तुम बताओ, सही बताओ, करप्ट तो नहीं हो तुम? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਨੇ ਸਰ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ नहीं की थी। झूठ बोल रहे जी, बकवास कर रहे हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ तुमने जरूर किया होगा, मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करता। और तुम्हारा अपना कुलीग तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਗ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਮੁਖਬਰ ਹੈਗਾ। मुखबर भी कुलीग ही होता है तुम जैसे थानेदारों। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖਬਰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂਕਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। आप सब तो पिछू एडा मनहूस लगता, पता नहीं तुसी सामने वेख के तोड़ा क्या हाल। ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਮਲਾ ਵੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੁੜਦਾ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਗਲੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਨੂੰ। अखिल साहब जो सवाल पूछ रहे हैं ना उसका जवाब में बकवास ना करें। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਥਾਣੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਸੱਤੀ ਖਾਣਾ ਨੇ। ਤੂੰ ਬੋਲ। ਅੱਛਾ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾੜ ਕਢਾਈ। ਉਧਰ ਵੇਖ ਉਧਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਵੇਖਣਾ। लो जी ये मुखबर नहीं गा, ये बीमार है। अच्छा यार तुमसे बात ना करें मुखबर साहब, ਜੀ ਸਰ। ये बताएं कि क्या इनका रवैया, अमूमी रवैया थाने में क्या होता है? ਉਹ ਜੋ ਜਿਹਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਣਤ ਤੇਰੇ ਤੇ। तेरी शक्ल ते भी ਉਹ लाना। ਜਾ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਤੇਰਾ। अच्छा मैंने डारा मास्टर पीछे थोक के दौड़ते। अच्छा हुआ क्या था? ਉਹ ਸਰ ਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਹੋਈ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। अच्छा ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਚੜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚਪੇੜ ਟਕਾਵੀ ਕਰਕੇ। तुमने? ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ। अच्छा पैंदी है इनू ही ने। बात सुनो, तुम भी तो इतने दहूश हो, तुमने भी कुछ मारा कि नहीं? ਕਿੱਥੋਂ? और बात सुनो मुखबर जी। तनख्वाह कितनी लेते हो? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, और क्या? ਛਾਪੇ 'ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। तुमने अफसरों को शिकायत कोई नहीं की? 1000 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਡੰਡ ਨੇ ਨਾਮ ਰਾਤਾ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਪੀਆ ਕਰ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਮੁਖਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗਾ। ਦੀਵਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਲੈ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? एक बारी मैंने फदले जी ना, ओ जी आ जेड़ा मुखबर नहीं बैठा, हाँ जी। इस गलत मुखबरी कोई कीती, कोई चोरी किसी और कीती, डकैती कोई और कीती, फद के मैंने ला गया जी। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਵਾਲਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਖਾਂ ਥੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਤੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਚੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਬੰਦ ਗਏ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਵਾਕਿਆ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਚਮਚਾ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। क्या पकड़े? चमचा। चम्मच? जी सर। यार फजूल बातें मास्टर जी की तुम तौहीन करते हो। ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਚਾ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਐਵੇਂ ਲੰਮੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਓਏ ਮਾਸਟਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਕੜ ਛੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰੀ ਜਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ।
जी खबर है कि गुज़श्ता दिनों एक सियासी शख्सियत के बेटे की शादी पर भांड पार्टी की यलगार, शुरका हंस हंस कर बेहाल। मैं कहा उधर तो वेख सारे कुर्सियां ते बैठे ने, इमरान खान साहब जमीन ते बैठे ने, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, क्यों ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। मैं कहा खान साहब ते एडे घबराए ने, क्यों जी? BMW च भी सीट कढ़ा के पीढ़ी रखी है। मैं कहा पंडा इधर वेख नुक्कर किड्डी सुकून वाली है, क्या बात है? उधर ते वेख अफरा तफरी मची है, हाँ जी। पता नहीं उधर बम चल गया है। ਉਹ ਮਰੇ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਲੈ ਫੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। पंडा उधर ते वेख, क्या बात है? तेरी क्यों नहीं होंदे? सदर ममनून हुसैन साहब शादी ते आए ने। ਉਹ ਮਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਵੇ ਕਾਹਦਾ ਬਿੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ ਸਦਕ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ममनून हुसैन साहब ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ? 4 ਪਲੇਟਾਂ ਹੋਰ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭੱਲੇ ਖਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਉਧਰ ਵੇਖ, हाँ जी। ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਗ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਨੂਸ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਕ। ਅਸਾਗ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਪੰਡਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਡਾ ਉਧਰ ਤੇ ਦੇਖ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਆਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੜਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਦੂਜੀ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭੰਡਾ, ਹਾਂ। ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਡਾ ਉਧਰ ਵੇਖ, ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੀ? ਇਹ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। क्या बात है? ਤਕਰੀਬ ਅਰੂਜ ਤੇ ਵੇ। क्यों नहीं? ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਦੋਂ ਨੱਚਣਗੇ? ਪੰਡਾ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖ, हाँ जी। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹੋਏ? ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਰਫਾਨ ਸਦੀਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੋਏ? ਇਹਨੇ ਤਾਲਬਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।